Hello everyone, and welcome to the first webinar of the webinar drive August 2022 organized by Skills Rediscovery. My name is Anand Teng and I am working at Skills Rediscovery, where our sole motto is that the right skills need to reach the right learners. And on one side of that, we are blessed with having a lot of highly skilled trainers with us. And one of those trainers is here with us right now. With having 6 years of experience in graphic designing, I welcome Manpreet Bharadwaj to this webinar, who will be educating you on the topic of graphic designing and Adobe Illustrator. And welcome, Manpreet ji. Thank you, sir. Thank you. How are you? Fine, sir. So, can you? So, this is one small thing that I'll be uh, doing with the members present in the webinar. Kindly just open your chat box and I'll just play a small activity with everyone here. So, I am going to ask a simple question to everyone. Okay. When I say graphic designing, what is the first thing that comes to mind? Kindly put it in the chat box. Anyone who is interested in answering the question, kindly put your answer in the chat box. I'll answer first. When I hear graphic designing, I it reminds me of posters. I don't know why. Maybe I'm not that into the field of graphic designing, but yeah, the first thing that comes to mind is posters. We'll have 30 seconds for everyone who wants to write in the chat. Creativity. Ashutosh says creativity. Anime. Kadaka says anime. That's nice. Anyone else? Okay. Okay, so that's it from my side. Let's hear it from your side, sir. You kindly educate us and tell us more about what you have to say about this topic. Okay, so hello everyone. My name is Manpreet Bharadwaj and I am working as sir told about me that I am working around 6 years with experience, and now I am sharing my topic with you, that is a graphic design, and what can we do in Illustrator, like what is Illustrator and what is its importance in graphic designing. So firstly, you should know about graphic designing, like two people share their views. Like first one has written creativity, and second answer is Anay. So creativity is the right thing, like something which can be presented in a creative way. That is known as graphic design. So this is a kind of information which can be presented in a creative way. Like हम अगर अगर कोई information present करते हैं, so is it comfortable in Hindi English both? Yes, Okay, sir. fine. Hindi, English, both is fine. Okay, my voice is audible, sir. I hope so. Fine, sir. So हम अगर किसी भी चीज को क्रिएटिव लाइक डेकोरेटिव वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई हम डिजाइन और शेप्स के थ्रू हम प्रेजेंट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, दैट इज नोन एज ग्राफिक डिजाइन. किसी भी मैसेज को कन्वे करना है इन अ क्रिएटिव वे, दैट इज नोन एज ग्राफिक डिजाइन. ठीक है. सो अगर हम कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं और उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट इज नॉट अ गुड डिजाइन और दैट इज आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट डिजाइन. सो हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है. अगर हम कोई चीज इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे सर ने अभी पोस्टर का एग्जांपल लिया, सो पोस्टर में क्या होता है कि एक विजुअल मैनर में, विजुअल वे ऑफ कम्युनिकेशन में हमें मैसेज शेयर किया जाता है. जैसे कोई मूवी का पोस्टर हो गया, कोई सोशल अवेयरनेस का पोस्टर हो गया. सो उनको हम कम से कम वर्ड्स में ईदर वी कैन राइट वन टाइटल और वी कैन जस्ट मेंशन वन विजुअलाइजेशन इनटू दैट. ठीक है. इधर इट कैन बी इन अ मिनिमल वे और इधर इट कैन बी इन अ फोटोग्राफ. ठीक है. सो कोई भी हम करंट मैसेज, जो भी करंट टॉपिक पे होगा, सोशल अवेयरनेस की एग्जांपल ले लें तो उसको हम शेयर कर सकते हैं. सो उनको हम कैसे डिजाइन करेंगे उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो होगा हमारा सॉफ्टवेयर के थ्रू. तो सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं, जिनमें हम डिजाइनिंग करते हैं, उससे पहले हमें थोड़ा सा स्केचिंग की तरफ भी ध्यान देना होता है कि अगर हम कोई चीज हमारे माइंड में आ रहा है तो उसको हमें इलस्ट्रेट करना होता है पहले, कि हमें एक आउटलाइन क्रिएट करना है ऑन अ पेपर.
ठीक है, इफ आई एम प्लानिंग टू डिजाइन अ वेबसाइट लेट्स से, सो मैं उसको पहले एक वेबसाइट के बारे में होगा कि उसकी पिक्चर्स कैसे मैंने इलेबोरेट करना है, ठीक है, कैसे उसके कॉलम्स बनाने हैं, कैसे उसके रोज होंगे, ठीक है, कैसे मैंने फर्स्ट पेज को डिजाइन करना, तो वो एक उसका वायर फ्रेम होता है जो कि टेक्निकल टर्म में हम उसको बोलते हैं। सो एक तो वेबसाइट की है। जैसे हम पोस्टर्स की डिजाइन करते हैं तो पोस्टर हमारा किस साइज का होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी पेपर पे हमने डिजाइन किया और हम ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सारी चीजें हमें वन बाय वन हम सीखेंगे इस कोर्स में। तो मैं उसको पहले आप इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ आपको। एक इलस्ट्रेटर हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारी स्केचिंग्स होती हैं। सो अगर हम इंटरफेस की बात करें, अगर जनरल गो थ्रू में हम जाएंगे तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। आई होप इट्स sharing sir right now. Yes, yes, I can see it, sir, very clearly. Okay, fine sir. So this is interface of Illustrator, Adobe Illustrator. So इसका और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जैसे फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, इनडिजाइन है। सो करंटली जो हम सबसे पहले यूज करते हैं, जो हमें बिगिनर लेवल पे आना चाहिए, दैट इज इलस्ट्रेटर। द रीजन बिहाइंड इज कि हम जो भी चीज अगर ग्राफिक डिजाइन में कोई इंटरेस्ट शो करता है तो उसको बेसिक स्केचिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको इलस्ट्रेट करना आना चाहिए क्या चीज हमने डिजाइन करनी है, ठीक है। तो उसका क्या रीजन है कि हमें अगर if we are able to draw something on paper, so we can just scan it up and just drag it down to this software. So उसके बाद हम इसको डिजाइन करते हैं। So अगर हम सीधा ही डिजाइन करेंगे that is also good, but हमें स्क्रैच लेवल से डिजाइन करना चाहिए, that is a proper method. So this is a software Adobe Illustrator and ये इसका इंटरफेस है। Currently I am using Illustrator CC 2020, ठीक है। सो उसका कुछ इस तरह से सेटअप है हमारे पास जो हम डिजाइन करते हैं। इसमें हमारे जैसे करंटली आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। फर्स्ट देयर आर डिफरेंट मेनू बार्स, जो यहाँ पर डिफरेंट मेनू बार्स हैं। फाइल, एडिट ऑप्शंस है, ऑब्जेक्ट्स है, टाइप है, सेलेक्ट ऑप्शंस है, इफेक्ट्स हैं, तो ये काफी सारे ऑप्शंस हैं। सेकेंडली जो हमारे मेरे पास अभी ये चीज विजुअलाइज आ रहा है, जो मैंने करंटली रिसेंट जिन पे फाइल्स पे काम किया तो मेरे पास वो शो हो रहा है। So if you are installing Illustrator first time in your system, तो मे बी आपका ये चीज नहीं आएगा, ठीक है। ये रिसेंट जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, ये Adobe ने रिसेंट वर्जन में ही अलाउ किया है ऐसा चीज कि हम अगर कोई आर्टिस्ट काम करता है फाइल पे तो उसको बार बार फाइल में जाकर ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर उसका ऐड हो जाता है कि यहाँ पर शॉर्टकट बन जाएगा आपका। जैसे मेरे पास कुछ मंथ पहले की फाइल भी है, मैंने 2 मंथ पहले काम किया, वो भी फाइल पड़ी है मेरे पास। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करूंगा, मेरे को वहां पर जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाउएवर अगर हम कोई फाइल को ओपन करते हैं, अगर मैंने कोई पिछली फाइल पे काम कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे फाइल में जाके ओपन भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ शॉर्टकट भी हैं जो आपको फर्दर नेक्स्ट आपको जैसे जैसे आप करते जाओगे तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, उसको कंट्रोल हो उसका शॉर्टकट है। सो इफ आई टॉक अबाउट दैट बेसिक ऑप्शन टाइप, तो सबसे पहले ऑप्शन क्या आते हैं हमारे। मैं सबसे पहले अभी क्रिएट न्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने कैनवस यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है, जिसको कि हम आर्टबोर्ड बोलते हैं। जैसे पेंटिंग में हम कोई अगर हमने कोई चीज क्रिएट करना है तो उसको एक आर्टबोर्ड चाहिए, एक पेपर चाहिए, ठीक है। तो वैसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसको आर्टबोर्ड बोलते हैं, यहाँ पर कैनवस भी कह देते हैं, डिजिटल जो हम प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ करते हैं। सो इफ आई गो टू दिस ऑप्शन क्रिएट न्यू, ठीक है, यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए। सो रिसेंट में मैंने जैसे बताया, मैंने यहाँ पर काम किया जिन जिन कैनवस पे मेरे पास वो आ गए। अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे इस सॉफ्टवेयर में मे भी आपके पास नहीं आएंगे। तो रिसेंट में ऐसे कुछ आ रहे हैं हमारे पास। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1000 by 1000 px आ रहा है। सो px में मैं अभी आपको यहाँ पर गो थ्रू कराता हूँ, ये यूनिट्स हमारे, ये सारा सेटअप कैसे करते हैं मैं आपको जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो सेव्ड में आएगा, अगर कोई आर्टिस्ट यहाँ पर सेव करता है तो उसको हम सेव कर सकते हैं। इफ एन आर्टिस्ट इज डेली डिजाइनिंग अ पोस्टर फॉर अ कंपनी, तो उसको बार बार फाइल सेटअप की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर सिंपल सेव कर सकता है, ठीक है। लाइक जनरल जो हमें पता है साइज A3 साइज होता है पोस्टर का, तो अगर उसको नहीं भी करना, ठीक है, कोई रिसेंट है या फिर उसका सेव्ड है, फेवरेट साइज है डॉक्यूमेंट का,
तो वो यहाँ पर सेव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर मोबाइल। सो लाइक यू कैन सी यूआई डिजाइंस इन मोबाइल। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है उसके, लाइक अभी जो अडोबी इंट्रोड्यूस कर रहा है दैट इज अडोब एक्सडी, ऑन द अदर हैंड फिग्मा इज अदर सॉफ्टवेयर। सो काफी सॉफ्टवेयर आ गए। उससे पहले यहाँ पर डिजाइन होते थे, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में डिजाइन होते थे, हाउएवर अभी भी होते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वन आपका ये मोबाइल डिजाइन का आ गया, उससे नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास वेब सेक्शन है। तो वेब में भी आपका जैसे 1920 बाई 1024 पिक्सल px मीटू से पिक्सल है यहाँ पर। सो ये जब सारे ऑप्शन है आपके पिक्सल में होंगे, क्योंकि अगर हमने कोई डिजिटल हमारा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, डिजिटल डिजाइन क्रिएट करना, सॉरी, तो उसको हम पिक्सल में कन्वर्ट करते हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि अगर हम इंचेस या कोई और यूनिट में काम करेंगे, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच वी कैन ड्रॉ एन इलस्ट्रेशन इन अ वेरी लाइट फाइल। लाइक इसका अगर मैं फाइल साइज क्रिएट करूंगा तो इसका ज्यादा हैवी फाइल नहीं होगा, इट्स अराउंड 1 to 2 MB। अगर मैं यहाँ पर इंचेस का कर दूंगा, इंचेस मेंशन कर दूंगा, तो वो काफी हैवी फाइल होगा। तो इंचेस का भी बताने जा रहा हूँ, वो कहाँ यूज होता है, दैट इज यूज्ड इनटू प्रिंट सेक्शन। सो प्रिंट सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटर साइज हमारे पास A4 साइज है। ठीक है, देन हमारे पास लीगल साइज है, जो कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूज होता है, किसी तरह का लेटर हेड डिजाइन करना है तो वहां पर यूज होगा। एंड टेबलॉइड साइज, देन A3। ठीक है, मोस्टली साइज होते हैं हमारे पास A4 और A3 यूज होते हैं, जो कि हम इसमें डिजाइन करते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हमारे फिल्म एंड वीडियो का है, जो कि ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता इसमें, इसके अलग से सॉफ्टवेयर है अडोबी के, बट फिर भी छोटा सा अगर कोई काम हो, कोई इलस्ट्रेशन डिजाइन करना हो तो उसमें हो सकता है। हाउएवर हाउएवर कुछ भी अगर करना है ज्यादा, हमारा अडोबी प्रीमियर में वो चीज बनाया जाता है। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये चीज भी इन्होंने मेंशन की है कि कोई हम चीज पहले से ही इन साइजेस पे बना सकते हैं, जैसे पोस्टर का यहाँ पे भी दिया गया है। बट यहाँ पे चीज क्या है, ये पीटी में है। पीटी मीन टू से पॉइंट्स। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो पॉइंट्स में कई बार आर्टिस्ट को नहीं समझ आएगा कि हमें पॉइंट्स की क्या वैल्यू है, तो हम उस हिसाब से करते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट कोई किसी क्लाइंट के लिए काम करना चाह रहा है, तो उससे साइज जरूर पूछेगा वो, कि किस डॉक्यूमेंट पे मैंने अपना डॉक्यूमेंट साइज डिजाइन क्रिएट करना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने काम करना है, कि अगर वो डॉक्यूमेंट साइज देगा तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, सो साइज का हमारे उससे क्लैरिटी हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट का, ठीक है, प्रिंट में अब मैंने यहाँ पर A3 साइज यहाँ पर सेलेक्ट किया। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ब्लू बार आ जाएगा साइड पे, दैट यू हैव सेलेक्टेड दिस पार्ट। उसके बाद हमें अगर कोई फाइल क्रिएट करना है, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कुछ, तो यहाँ पर अनटाइटल्ड आ रहा है अभी, अनटाइटल्ड 1। सो इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल, आई शुड नेम दैट फाइल फर्स्टली। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई अगर प्रोजेक्ट आएगा तो मैं उसका नेम दूंगा सबसे पहले। नेमिंग से ही हमारा आगे होगा। जैसे अब मैंने आज अगर पोस्टर डिजाइन करना है, से कोई मैंने अगर पोस्टर डिजाइन करना है, से तो मैं पोस्टर यहाँ पर 1 कुछ भी अगर नाम दे सकते हैं, या फिर आप अच्छे कोई डेट के हिसाब से भी नाम दे सकते हो, जैसे टुडे इज 5th of August। तो उस हिसाब से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर आप नाम नहीं दोगे तो वो फाइल हमारा भी बाद में कहीं फाइल ढूंढने में, सर्च करने में, ऑप्शन में दिक्कत आती है। अनटाइटल्ड नाम के काफी फाइल्स हो जाती है हमारे पास। उसके बाद नेमिंग हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन जा रहे हैं यहाँ पर, विड्थ और हाइट का। सो विड्थ मीन टू से कि हमारा आर्टबोर्ड का कितना विड्थ होगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और उसके यूनिट्स यहाँ पर दिए गए हैं हमारे पास। यूनिट्स अब यहाँ पर हैं हमारे पास पॉइंट्स में। सो मोस्टली जो प्रेफर किए जाते हैं दैट इज इनटू इंचेस। तो अगर कोई भी हमारा पोस्टर साइज का डॉक्यूमेंट है वो इंचेस में होगा, अगर कोई भी डिजाइन करना है, क्योंकि हमने उसका प्रिंट भी निकालना है। ठीक है, प्रिंट ही है रीजन जो हम इस सॉफ्टवेयर में आए हैं। अदरवाइज पोस्टर हमारा और भी सॉफ्टवेयर में डिजाइन हो सकता है, जैसे कि फोटोशॉप में भी हम कर सकते हैं। जैसे हम जिसको हम डिजिटल पोस्टर हम जिनको बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम Just a second, Manpreet sir. Ashutosh, kindly mute yourself. I'm so sorry. ओके, सो नाउ इट्स फाइन आई थिंक। सो Please continue. यहाँ पर हमने इंचेस का, वी हैव मेंशन हियर इंचेस।
सो यहाँ पर A3 का हमारे पास स्ट्रेट अवे वैल्यू आ गया है इंचेस में, ठीक है। सो A3 साइज का हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, वी कैन सी हेयर ओरिएंटेशन ऑप्शन। सो दिस ऑप्शन मीन टू से कि हमें किस एक्सेस में चाहिए। अब लेट्स से ये जिसका हाइट आपको ज्यादा दिख रहा है, इस हमारे विजुअल को हाइट ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे दैट मीन्स आपका पोर्ट्रेट साइज हम इसको बोलते हैं पोस्टर को, ठीक है। जिसका हाइट ज्यादा होगा विड्थ कम होगा। और यहाँ पर हमारे पास अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सो दिस ऑप्शन मीन टू से लैंडस्केप साइज, जिसका हमारे पास जैसे हमारा लैपटॉप का स्क्रीन है तो उस पैटर्न में हमारे पास आएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, सिंपली ये इन्वर्ट हो जाएंगी, विड्थ वाली हाइट में चली जाएगी और हाइट वाली विड्थ में आ जाएगी। यू कैन सी दैट। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये 11 पॉइंट समथिंग वाली यहाँ पर आ गई है, और अगर यहाँ कर रहा हूँ तो 11.16 वाली ऊपर चली गई है, ठीक है। उसके बाद ये सेटअप करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट का साइज एक बार ही सेटअप होता है। अगर इसको हमने इग्नोर कर दिया तो जो भी हम इलस्ट्रेशन बनाएंगे, अगर इन फ्यूचर चेंज करना पड़े तो वो हमारी काफी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद हमारे पास आ गया आर्ट बोर्ड्स। अब स्टार्टिंग में ये पूछ रहे हैं आपको आर्ट बोर्ड्स कितने चाहिए। सो करंटली आई एम लुकिंग फॉर 1 पोस्टर 1 पेज, सो 1 इज ओके विद मी। अगर आपको मल्टीपल पेजेस में काम करना है, जो कि हम आगे जाके क्लासेस में भी देख सकते हैं कि जब हम सीख लेंगे ऑप्शन इसके, तो मल्टीपल पेजेस पे एक साथ कैसे काम करेंगे तो वो हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको कोई बोल रहा है 10 पेजेस का आपको कोई ब्रोशर बनाना है, तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पर 10 भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट वन इज योर ब्लीड ऑप्शन। सो ब्लीड ऑप्शन मीन टू से कि आप इंचेस में है, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्टली कि IN लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट प्रेजेंट इंचेस। सो इंचेस मीन टू से अगर आप प्रिंट के लिए इसको देना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट को, सो आप वहां पर देखते हो कि आपको न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का आगे जाके एग्जांपल दूंगा मैं कि कैसे प्रिंटिंग होती है, उनकी मार्जिन होते हैं। कोई भी प्रिंटिंग अगर विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो उनका मार्जिन होता है, सेव मार्जिन जिसको हम बोलते हैं। तो उनको ये वैल्यू दी जाती है, लाइक 0.5 इंचेस अगर मैं दे दूं तो 4 एक्सिस पे 0.5 इंचेस का एक मार्जिन बन जाएगा, सेफ मार्जिन। देन हम वहां पर कोई भी इलस्ट्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर आर सम एडवांस ऑप्शंस। सो ये एडवांस ऑप्शन में आ रहा है आपके पास CMYK कलर। अब कलर आप बोलोगे कि सिंपल कलर होता है, CMYK कलर मीन टू व्हाट मीन टू से। सो यहाँ पर आप देखोगे देयर आर 2 ऑप्शंस, ठीक है, CMYK एंड RGB। CMYK स्टैंड फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। अब ब्लैक आप बोलोगे कि बी से क्यों नहीं है, क्योंकि बी से जो इसका हमें टेक्निकल टर्म है हमारा, के से हमारा टेक्निकल टर्म बोला गया की कलर। की कलर मीन टू से अगर हम सभी कलर मिक्स कर देते हैं तो वो एट वन लिमिट इट विल क्रिएट अ ब्लैक कलर। सो दैट इज व्हाई illustrator has given this letter a K color, like CMYK, cyan, magenta, yellow and की कलर, क्रिप्टन मीन टू से। सो आगे जाके और भी बताऊंगा ऑप्शन, जैसे आपको समझ आएगा। सेकंड वन इज योर RGB। RGB इज अनदर कलर मोड जो कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूज होता है। दैट इज लाइक सोशल मीडिया का पैनल कोई डिजाइन करना है तो वहां पर RGB हो सकता है, ठीक है। कोई भी हमें फेसबुक का डिजाइन करना है तो वहाँ हो सकता है, ठीक है। कोई एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करनी है डिजिटल फेसबुक के लिए तो वहाँ RGB इज ओके विद दैट। उसके बाद नेक्स्ट वन इज योर 10 इज योर इफेक्ट, रास्टर इफेक्ट हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाई 300 PPI। हाई मीन टू से हाई क्वालिटी, 300 PPI मीन टू से पिक्सल पर इंच। अब पिक्सल मैंने बताया, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आप जैसे जैसे जूम इन करोगे, अभी मैं आप जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा पिक्सल भी आपको समझाऊंगा। पिक्सल जब हम जूम इन करते हैं तो हमें स्क्वायर्स दिखते हैं, ठीक है। जैसे आप मोबाइल पे फोटोग्राफ जूम इन करोगे तो एक्सट्रीम जूम इन पे जाके आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स दिखेंगे जो कि ये फोटो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हाई है तो दैट मीन्स दैट इज अ गुड क्वालिटी फॉर प्रिंट, ठीक है। अगर मैं मीडियम पे करता हूँ तो दैट इज ओके क्वालिटी, आप डिजिटली भी यूज कर सकते हो और प्रिंट के लिए भी। नेक्स्ट वन इज योर स्क्रीन क्वालिटी। यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है स्क्रीन क्वालिटी, ये एक्सेप्टेड नहीं होता कि 72 PPI इज गुड फॉर वेब क्वालिटी बट नॉट गुड फॉर प्रिंट क्वालिटी, ठीक है। क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ाएंगे तो मे बी आप अच्छा सब डिजाइन क्रिएट कर लिया, आप जब आप प्रिंट आउट निकलवाने जाओ
तो आपको पता लगेगा कि हमारा प्रिंट क्वालिटी अच्छा नहीं है। सो ऑलवेज रिमेन वन थिंग इन योर माइंड दैट अगर आप प्रिंट के लिए जा रहे हो तो फर्स्टली आप यहीं पर सेट कर लो डॉक्यूमेंट कि आपको इन फ्यूचर लग रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए जाएगा, उसके उसके अकॉर्डिंग ये चीज कर सकते हो। अभी मोर ऑप्शन है, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट आगे क्रिएट करूंगा तो वो आगे आपको बताऊंगा। सो सिंपली क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड लेट्स से मैंने ये अभी अभी के लिए पोर्ट्रेट साइड क्रिएट कर लिया। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऊपर डिफरेंट मेनू बार्स हैं और उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपके पास टूल बार है। ठीक है, दीज आर योर टूल्स फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट डिजाइंस एंड क्रिएटिव पोस्टर्स। ठीक है, आप वन बाय वन सभी टूल्स हम देखेंगे इन फ्यूचर क्लासेस। सो लेफ्ट साइड पे आपके टूल्स हैं, देन राइट साइड पे आपके ये चीज है आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सेटअप होता है। जैसे वन बाय वन मैं यहाँ पर जाऊंगा तो ये आप देख सकते हो कलर्स का शॉर्टकट यहाँ पे बनाया हुआ है, आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे आप यहाँ पर आपको कलर नहीं दिखेगा, तो जो भी ऑप्शन इन केस आपका यहाँ पर डिसेबल हो जाए, आपको मिले ना, कहीं भी मिलता नहीं है, जस्ट गो विद विंडो ऑप्शन। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है। ठीक है, जैसे मेरे को कलर का अब यहाँ पे पता नहीं है, अब मैं यार इलस्ट्रेटर में काम करता हूँ, मेरे को शॉर्टकट से यहाँ पे पता है, बट फॉर अ न्यू आर्टिस्ट अगर आप कलर ऑप्शन पे जाओगे तो कलर पे क्लिक करोगे, कलर ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन ऑल्सो क्रिएट शॉर्टकट्स विद दैट। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आ रहा है, देखो कलर गाइड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्वेचेस आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर आपको व्हाइट की वैल्यूज मिल जाएंगी, ब्लैक ग्रे सभी तरह की वैल्यूज मिल जाएंगी। इनका यूज क्या है मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा अभी। सो नेक्स्ट वन इज योर कलर स्वेचेस अगेन। सो दीज आर योर सॉलिड कलर्स, आपने कोई भी कलर देना है, यहाँ पर शेप बनाया उसमें कैसे कलर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर, यहाँ पर आपके ब्रशेस हैं। ठीक है, सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास है। लेट्स से यहाँ पर ओपेसिटी का ऑप्शन है। ठीक है, विजिबिलिटी, ओपेसिटी मीन टू से ट्रांसपेरेंसी, आपका जो भी आप यहाँ पर शेप क्रिएट कर। ओके, सो लेआउट के बाद हमारा नेक्स्ट वन इज योर पेंटिंग। सो पेंटिंग में क्या होगा ऑप्शन हमारे पास, ब्रशेज एंड कलर्स, तो वो हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज योर लाइक पेंटिंग एंड ये वाला ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट वन इज योर ट्रेसिंग। ट्रेसिंग मीन टू से कि हम हमारे पास इसमें ऑप्शंस आते हैं काफी, जैसे आप कोई भी पिक्चर विजुअलाइज कर रहे हो तो हम इसको अच्छे वे में वेक्टर वे में डिजाइन कर सकते हैं। आपको मैंने पिक्सल बताया था, अभी मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट ओपन करके बताऊंगा उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो वो काफी ऑप्शन है। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में मोस्टली क्या यूज होता है, हमारे पास फॉन्ट्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग सेटअप हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है। करंटली मैं असेंशियल क्लासिक पे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी बेसिक शेप से कोई चीज ड्रॉ करता हूँ अभी। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे डिफरेंट मेनू आपको बता दिया मैंने। एंड नेक्स्ट दिस इज अवर प्रॉपर्टी बार। सो प्रॉपर्टी बार मीन टू से आपको यहाँ पर नो सिलेक्शन बता रहा है, कोई चीज आपने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया अभी। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पर अभी आए हो इस ऑप्शन पे, तो यहाँ पर ये कलर आ रहा है, ये आपका स्ट्रोक आ रहा है, स्ट्रोक मीन टू से आउटलाइन। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको जैसे जैसे टास्क करेंगे हम उस वहां पर बताए जाएंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग विद वन शेप। सो ये हमारा सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन टूल होता है। सिलेक्शन तभी होगा अगर हम कुछ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। लेट्स से अगर मैंने आर्ट बोर्ड यहाँ पर क्रिएट किया तो उसको कहीं भी आप सिलेक्शन करोगे वो चीज वहां से मूव नहीं होगा, दिस इज स्टिल, तो आर्ट बोर्ड कहीं भी हमारा मूव नहीं होगा। ठीक है, अब रही बात इसको जूम इन जूम आउट करने की, तो कई बार होता है कि जूम इन जूम आउट से पहले हम शेप ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही आप टूल बार पे जाओगे, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे एरो दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर इट्स अप टू यू, आप इसको सिंगल रो में भी आप रख सकते हो टूल लिस्ट को, और अगर आपको इस तरह से अच्छा लग रहा है तो आप दोबारा से क्लिक करोगे तो वो डबल रो में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। सो जैसे कि मैंने बताया आर्टिस्ट को जैसा पसंद होता है उसके अकॉर्डिंग ये चीज होती है। एंड अनदर थिंग इज, लेट्स से अगर आपका ये ऑप्शन बाई चांस अगर आपने ऑप्शन यहाँ पर कर दिया जी, ठीक है, ये वाले ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से हो गए हैं, सभी खराब हो गई, आपका कोई ऑप्शन गायब हो गया है या कोई चीज यहाँ से आपको नहीं पता लगा, लेट्स से मैंने ये चीज कर दी। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा ऑप्शन कहाँ गया। मैंने आपको एक ऑप्शन ये बताया था विंडो वाला, एंड उससे बेटर ये चीज है कि यहाँ पर देखिए आप असेंशियल क्लासिक में अगर जाओगे
तो उसी को हमने रीसेट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है रीसेट एसेंशियल क्लासिक। तो जैसे आप क्लिक करोगे यू आर बैक टू योर बेसिक सेटिंग। सो ऑलवेज रिमेन वन थिंग, अगर यहाँ से कोई चीज मूव भी हो जाता है, डिलीट भी हो जाएगा, तो उसी ऑप्शन पे जाना है आपने। असेंशियल क्लासिक पे काम कर रहे हैं तो रीसेट असेंशियल क्लासिक, अगर असेंशियल पे करोगे तो रीसेट असेंशियल आ जाएगा। ठीक है। एंड सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर बेसिक शेप क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर स्क्वायर दिखेगा, आप स्क्वायर या फिर कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे। स्क्वायर नहीं होगा तो राउंडेड स्क्वायर होगा, या फिर एलिप्स होगा, दैट इज अ सर्कल। ठीक है, तो इस तरह की शेप होगी, इनसे हम कुछ बनाने का ट्राई करते हैं। तो बेसिक शेप से हम सीखेंगे यहाँ पर। तो मैं रेक्टेंगल का ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट किया, सो नो सिलेक्शन आ रहा है, और यहाँ पर आप कलर देख सकते हो। शेप का कलर हमारे पास क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट व्हाइट बता रहा है। तो पीछे हमारा आर्टबोर्ड कौन से कलर का, व्हाइट कलर का है। सो हम स्टार्टिंग में भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से इफ आई अप्लाई येलो कलर हियर। ठीक है, अब स्ट्रोक मीन टू से आउटलाइन। तो अभी के लिए मैं आउटलाइन भी साथ में रखता हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा स्क्वायर ड्रॉ किया। अब प्रॉपर स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए हमें प्रेस करना होगा शिफ्ट की। शिफ्ट की जैसे मैंने प्रेस किया, यू कैन सी दैट वहां पर एक कर्सर के साथ वैल्यू आने लग गया। जैसे मैं रिलीज करता हूँ तो वो हट जाता है, जैसे मैंने शिफ्ट की प्रेस किया अगेन वो मेंशन होगा। तो शिफ्ट की मैंने प्रेस किया एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन देयर, यू कैन सी दैट वैल्यूज आर इक्वल, W एंड H वैल्यूज आर इक्वल हेयर। ठीक है, इंचेस में वो वैल्यू मेंशन कर रहा है। ओके, सो ये आपका इक्वल हो गया शेप। अगर आपको फ्रीली ड्रॉ करना है शेप, आपको कोई मेंशन नहीं किया गया कि इक्वल शेप है या कुछ भी ऐसा है, एंड आप फिर यहाँ पर जाके स्क्वायर पे जाके कुछ इस तरह से भी अपने अकॉर्डिंग शेप ड्रॉ कर सकते हो जैसे मर्जी, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस इन द बिगिनर लेवल। ठीक है, अनदर थिंग, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई मेंशन किया गया कि मेरे को इतने बाय इंचेस का स्क्वायर ही चाहिए या इतने बाय इतना रेक्टेंगल चाहिए, जस्ट सेलेक्ट योर दिस थिंग रेक्टेंगल, एंड अब उसके बाद आपको प्लस का आइकन आ रहा है, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ब्लैंक स्पेस एरिया। किसी भी खाली एरिया पे क्लिक करोगे आपके पास विड्थ और हाइट आ जाएगा। लेट्स से अगर आपका क्लाइंट बोलता है जी मेरे को 2 बाय 2 इंचेस का या 5 बाय 5 इंचेस का ये चीज चाहिए मेरे को। ठीक है, आप वहां पे इस तरह शिफ्ट क्लिक करके भी कर सकते हो। आप इस तरह से भी स्टार्टिंग में ओके प्रेस करोगे, आपका यहाँ पर 5 बाय 5 इंचेस का ये स्क्वायर रेडी है। ठीक है, सो डिफरेंट मेथड्स हैं यहाँ पर एक शेप क्रिएट करने के। ठीक है, लेट्स से मैं ये सारी शेप डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए। हम कुछ पैटर्न बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो विद दिस शेप, these shapes we can draw, we can create some pattern। सो पैटर्न क्या होता है जी, अब मैं इसका शेप मैंने पहले तो साइज कम करना है मैंने। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो प्रोपोर्शनेट हो तो शिफ्ट प्रेस करना है आपने और सिंपली इस तरह से करोगे। अगर मैं वैसे भी करता हूं तो वो हो तो रहा है प्रोपोर्शनेट, बट वो लॉक्ड नहीं है वो चीज। देखो नीचे भी ड्रैग हो रहा है और साइड पे भी। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो वो एक पिंक लाइन डिस्क्राइब कर रहा है कि डायमेंशन विल बी इक्वल, और आप इस तरह से रिलीज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं जैसे इसी का मैं स्क्वायर का पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, एक बेसिक शेप से डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट। ओके, सो शेप क्रिएट करने, पैटर्न क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज चाहिए यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉलम्स चाहिए, कॉलम में इसी शेप पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो उसके लिए आई नीड टू कॉपी दिस शेप। सो फर्स्टली अगर मैंने कॉपी करना है, पहले मेरे को जूम इन करना पड़ेगा अच्छे से, डिटेलिंग के शेप ठीक है ये, इसका आउटलाइन चाहिए या नहीं चाहिए। जूम इन हम कैसे कर सकते हैं, ऑल्ट मैंने जैसे ऑल्ट प्रेस किया, आप मिडल माउस से इसको ड्रैग इन कर सकते हो और ड्रैग आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कर्सर लेके आ रहे हो तो यहीं पे जूम इन होगा और यहीं पे जूम आउट होएगा। अगर मैं यहाँ इस एरिया पे जहाँ पे मेरा एरो है यहाँ पर करूंगा तो वहीं पर वो जूम इन किया करेगा। ठीक है, अगर इन केस अगर आपका यहाँ पे भी हो जाता है जूम इन, अब आपको वो चाहिए रेक्टेंगल चाहिए, तो आपने वहां पे उसको पैन करना है। पैन मीन टू से आपने इसको मूव करना है कैनवस को, आपने शेप को नहीं मूव करना। स्पेस बार प्रेस किया, आपका हैंड टूल एक्टिवेट होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी जैसे जैसे आप काम करोगे। सो स्पेस बार से क्या हो रहा है कि उसी जूम इन लेवल पे वो चीज हमारा शेप आ रहा है। ठीक है, अब इतना जूम इन लेवल मेरे को कंफर्टेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सॉरी,
यहाँ पर आपका जूम इन लेवल कितना है आप देख सकते हो। सो अगर मैं एक्सट्रीम जूम इन कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे मेरा कोई भी पिक्सल नहीं आ रहा। यू कैन सी दैट टोटली वेक्टर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं इसका आउटलाइन भी डिसेबल कर रहा हूँ, या यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, इंस्टॉल्ड यहाँ से, तो इस तरह से ये डिसेबल हो गया। नाउ इसका एक ही कलर है जो इसके इनसाइड है, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक आपको पैटर्न बना के दिखा रहा हूँ। तो पैटर्न के लिए क्या चाहिए हमें, पहले फुली जूम आउट मैंने इसका करना है। अब जैसे मेरा जूम आउट ज्यादा हो गया, ठीक है, तो मैंने स्क्रीन के अंदर ही फिट करना है जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था। सो उसको कैसे हम कर सकते हैं, कंट्रोल 0 से। सो फिट टू स्क्रीन बोलते हैं हम इसको। धीरे धीरे आपसे प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं बताऊंगा फ्यूचर क्लासेस में कैसे काम करना है इस पे, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट गो थ्रू करवा रहा हूँ आपको, और मैं ऑल्ट से इसका कॉपी अभी क्रिएट करूंगा। जैसे मैं ऑल्ट पे इसको सेलेक्ट करूंगा पहले सिलेक्शन टूल से, और ऑल्ट की जैसे ही मैंने प्रेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डबल एरो हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसको ड्रैग डाउन करूंगा, बट ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब ये चीज आ रही है स्नैप, स्नैप मीन टू से टॉप, और जो अभी जो मैं शेप बना रहा हूँ वो हमारा एक अलाइनमेंट में जा रहा है, बट हमारा इस तरह से भी वो चीज हो सकता है। सो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे ही हम कॉपी क्रिएट करेंगे, कीप प्रेसिंग ऑल्ट की एंड ऑल्सो प्रेस शिफ्ट की। शिफ्ट की से क्या होगा, वो लेफ्ट और राइट नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रिलीज कर देना है। और इसको हम दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं, तो बार बार हम इस तरह से ऑल्ट करके करेंगे, काफी टाइम लगेगा। सो रिपीट कमांड के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, या फिर हम एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल डी, ठीक है। तो इस तरह से वो कमांड रिपीट होगा आपका। सो जैसे जैसे आपकी क्लासेस होंगी आपको बताया जाएगा दोबारा से कैसे होगा। डोंट वरी अबाउट शॉर्टकट कीज, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू विद दीज ऑप्शंस। सो मेरा एक कॉलम यहाँ पर बन चुका है। अब मैंने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पर कोई और चीज नहीं बनी है, तो मैं इसको सिलेक्शन कैसे, जैसे मैंने अभी किया है, कैनवस के बाहर से आके, आर्टबोर्ड के बाहर से आके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड अनदर मेथड इज कंट्रोल ए, विच इज अ यूनिवर्सल शॉर्टकट, जैसे कि आप एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस में भी यूज करते हो। कंट्रोल ए इज फॉर सेलेक्ट ऑल, ठीक है। अगर आपका कोई बाहर कुछ भी नहीं ड्रॉ है तो सिलेक्ट ऑल, दिस ऑप्शन इज गुड विद दैट, कि कंट्रोल ए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने इसको ग्रुप करना है। तो ग्रुप हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कई बार गलती से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया तो इन बिटवीन कॉलम के हमें प्रॉब्लम आएगा। सो ग्रुप का यहाँ पर आप देख सकते हो, एडिट में जाओगे, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट में जाओगे, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन है, दैट इज शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल जी। जी फॉर ग्रुप, कंट्रोल जी हम यहाँ पर कमांड अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्टली कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल, एंड देन कंट्रोल जी, ठीक है। सो यहाँ पर है, अब इसको हम मैंने सिलेक्ट किया तो ये अभी देखो सिलेक्टेड ही हो, कहीं भी मैं इसको लेके जाऊं एक साथ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका कॉपी क्रिएट करना है, अगेन ऑल्ट प्रेस किया मैंने यहाँ पर, और ड्रैग इट डाउन टू राइट। अब मैंने इसको प्रोपोर्शनेट रखना है, बिल्कुल अलाइन रखना है लेफ्ट के, तो शिफ्ट मैंने साथ में प्रेस किया। अब जो आपको पिंक लाइन दिख रहा है दैट रिप्रेजेंट योर अलाइनमेंट, ठीक है। सो जैसे मैंने इसको रिलीज किया तो वहां पर वो अलाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज टोटली अलाइन। अब इसी को मैंने रिपीट करना है, मेरा ये अभी कॉलम सेलेक्ट है, सो आई कैन गो विद कमांड कंट्रोल डी फॉर रेपिटेशन, कंट्रोल डी फॉर रेपिटेशन, ठीक है। अब डोंट वरी अबाउट दिस स्पेस। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि मैंने अब जैसे ये चीज टोटली ड्रॉ करी है, एक तरह से पैटर्न ड्रॉ किया। सो अगेन मैंने जैसे बताया कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसको भी ग्रुप करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल जी, या आप यहाँ पे भी जा सकते हो ऑब्जेक्ट में और गो विद ग्रुप ऑप्शन। सो फर्स्टली चेक कर लेना कि ग्रुप हो गया वो, ठीक है। कंट्रोल जेड फॉर अंडू, कहीं भी आपका कोई शेप इस तरह से चला जाएगा, कोई डिजाइन खराब हो जाता है। इसमें मल्टीपल अंडू हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 जितने मर्जी बार किया उतना ही आपका बैक जाएगा, कंट्रोल जेड प्रेस करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये चीज चला गया। अब मेरे को अलाइनमेंट का पैनल अगर चाहिए, अलाइन का चाहिए, तो यहाँ पर गया मैं, जस्ट होल्ड ऑन,
यहाँ पर मेरा राइट साइड पे ये अलाइन पैनल है, ठीक है। आई होप सभी को दिख रहा है ये ऑप्शन। सो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट। तो जैसे कि हमने सेंटर में करना है, तो उससे पहले हमें देखना चाहिए कि अलाइन हमें किस चीज को किस चीज पे करना है। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली शेप्स हमारी कैनवस पे, आर्ट बोर्ड पे अलाइन हो, ठीक है। सो अलाइन के ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपने चेक करना है हमेशा कि अलाइन टू सिलेक्शन और अलाइन टू आर्ट बोर्ड। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आर्ट बोर्ड सेलेक्ट है। सो हमने ये चीज सेलेक्ट की और मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइन किया, देन यहाँ पर vertical align किया। So now these shapes are exactly on your center of artboard. So I hope यहाँ तक समझ आया हो सभी को कि बेसिक शेप से कैसे पैटर्न बनाते हैं। तो इस तरह से हम बिगिनर लेवल पर डिजाइन कुछ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। So that is all about basic shapes। तो हम कैसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। So any questions with that? Anyone has any questions about the information that Manpreet sir has given us? मेरे को स्टार्टिंग में सर एक डाउट आया था, हाँ मैं जी पूछ सर। लूं? हाँ जी सर। तो आपने पहले बताया था कि पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। यस सर। तो फिर आपने वो पॉइंट्स में जो एक फ्रेम बनाया था, वो पॉइंट्स आपने किसके लिए यूज, पोस्टर के लिए यूज किया था आपने? सर पॉइंट्स मैंने बताया था, पॉइंट्स यूनिट नहीं यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे मैंने यूज किया दैट इज इंचेस। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ कि व्यू ऑप्शन पे जा रहा हूँ, ठीक है। सो इंचेस में हमारा काम होगा। पॉइंट्स भी हमारे प्रिंटिंग में होते हैं जो मोस्ट हमारे प्रेफर किए जाते हैं प्रिंट के लिए, जैसे विजिटिंग कार्ड हो गया, वहाँ हाँ। पे भी इंचेस में होता है, पोस्टर में भी इंचेस में होगा, क्योंकि वो इट्स अ स्मॉल डॉक्यूमेंट। सो जो हमारा लाइक बड़ा डॉक्यूमेंट होगा दैट इज लाइक बिल बोर्ड्स हैं, तो उसको हम फीड्स में भी करते हैं। तो हमारे आउटडोर एडवर्टीजमेंट है उसको हम फीड्स में करते हैं, तो वहां समझ पर होगा, उसको इंचेस में कन्वर्ट करके इसमें फिर हम ड्रॉ करते हैं। समझ गया सर। मेरे को तो यही पूछना था, और आई गेस और किसी को डाउट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनप्रीत सर, थैंक यू एक सर। ये वेबिनार होस्ट करने के लिए। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वेबिनार था, मैंने तो अच्छे से काफ़ी सुना, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी कोई हेल्पफुल लगा हो ये वेबिनार, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे मैं भी अभी मार्केटिंग में काम करता हूँ, एंड आई रियलाइज कि ग्राफिक डिजाइनिंग कितना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है इवन फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। एंड क्रिएटिविटी, एज स्टार्टिंग में जब मैंने पूछा था कि ग्राफिक डिजाइन सोचते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आती है दिमाग में, तो क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर। तो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम साइश। यस साइश, मैं अभी वही इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ एक दो चीज़ों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ब्रीफ चीज़ स्किल्स रीडिस्कवरी के बारे में बताना चाहूँगा। तो Skills Rediscovery is a startup which is registered with the Skill India mission of the Ministry of Skill Department, Skill Development and Entrepreneurship of the Government of India. We are the first multilingual skills education portal in India. We collaborate with academic institutions and corporates to help them execute various skills-based short courses in accordance with NEP 2020 requirements and industry demands. And Skills Discovery has also been awarded as the best EdTech startup of the year by TPL Shiksha Awards 2021. And it is also incubated with the Vadodara Startup Studio. तो ये इंफॉर्मेशन मेरे को आप सब तक पहुंचानी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लेटर ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा, जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, वो आपको कल सुबह तक मिल जाएगा आपके मेल आईडी पे जो आपने सबमिट किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रिकॉर्डिंग होगी मीटिंग की, वो भी थोड़े टाइम में आपको मिल जाएगी, मोर और लेस 4-5 डेज में आपको मिल जाएगी।
And is there anything else anyone else wants to ask? I guess no. मनप्रीत सर और कुछ आप अपनी साइड से इन्फॉर्म करना चाहेंगे? It's a very creative course if anyone wants to join that, because हमारा हर एक फील्ड इससे रिलेटेड है, हमें कोई ना कोई क्रिएटिव बनाना है, कोई इंडस्ट्री है तो उसकी रिक्वायरमेंट इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। कोई भी है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री है या कोई भी 3D इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी पहले ग्राफिक्स बनेगा आपका। कोई है जैसे टेलीविजन इंडस्ट्री है, तो काफ़ी एलिमेंट कोर्सेज है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, सो एवरीवन शुड ज्वाइन दैट which are who are interested. सॉरी, जिनको भी मनप्रीत सर का जो कोर्स है उसकी लिंक चैट सेक्शन में प्रोवाइड की गई है और आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। मनप्रीत सर को हम लोग काफी टाइम से जानते हैं और मैं भी पर्सनली टाइम से जानता हूँ एंड आई फील इज अ वेरी काम ट्रेनर, काफी काम रहते हैं और ही कैन टीच इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर और अच्छे डेप्थ में पढ़ा सकते हैं। तो इफ एनीवन हु इज इंटरेस्टेड काइंडली कॉन्टैक्ट अस। आप स्किल्स रीडिस्कवरी की वेबसाइट भी देख सकते हैं और द पीपल हु हैव अटेंडेड दिस वेबिनार, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक फीडबैक फॉर्म आपको दें एंड फीडबैक में आप अपने रिव्यूज काइंडली हमको बता दीजिएगा कि बिकॉज वी आर ट्राइंग, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव विद एवरी वेबिनार एंड आपके फीडबैक से इट विल हेल्प अस वेरी मच बिकॉज ऑब्वियसली डेवलप करेंगे तभी जब हमें हमारी गलतियां पता चलेगी। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड एंड इज देयर एनीथिंग एनीवन एल्स विल लाइक टू एड्रेस? No. So that's it, I guess.